is change is a biggest challenge today. आज सुबह जब न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था तो देयर वॉज ए हेडलाइन दैट 92,000 न्यू कोरोना केसेस फाउंड इन इंडिया एंड इंडिया is going to achieve second place in the world, beating Brazil. Had we ever thought कि कभी ऐसा भी होगा कि हमें इस तरह से changed life जीनी पड़ेगी? Now, why these 90,000 cases are coming? Because so many people are not changing themselves. So let us start the topic from here. Living with mask, living with sanitizers, this is a new normal for us. आप सबको पता है, इससे पहले कभी हमने ऐसा नहीं किया, but this is a new normal. मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है कि क्या थे हम, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें मिलकर आज ये समस्याएं सभी। तो बहुत पहले जब केवमैन से लेकर आज तक जहां हम पहुंच गए हैं, देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस, बहुत से चेंज हो रहे हैं। लेकिन कुछ चेंजेस ऐसे हैं, कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जिनको हम इजीली एडजस्ट कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल सीजन्स चेंज होते हैं, जब सीज़न चेंज होते हैं तो हम ऑटोमेटिकली, अगर बरसात से सर्दी आ गई तो हम लोग अपने कपड़े निकाल लेते हैं, सर्दी के कपड़े निकाल लेते हैं और पहन लेते, बिकॉज वी आर रेडी फॉर इट। समटाइम्स वी आर नॉट रेडी फॉर द चेंज। आप ये देखिए, एवरीवेयर there is a change. Nature is changing, seasons are changing, science is changing, geographical boundaries are changing, rivers are changing, everything is changing. From your families, now we have been converted into micro homes. छोटे, हमारे घर के अंदर छोटे घर बन गए हैं, हमारे संसार के अंदर एक छोटा संसार बन गया। सनराइज से सनसेट तक चेंज होते हैं। जिंदगी में लाइफ चेंजेस इनटू डेथ। अगर नाउ से अबाउट टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इतनी चेंज हो गई है कि आज से 20 साल पहले या 25 साल पहले जो चीज़ें पॉसिबल नहीं थे, टुडे एवरीथिंग इज पॉसिबल। द हिस्ट्री ऑफ चेंज, यू नो, आई समराइज इट इनटू 5 words, only 5 words. You take it home today, tell your children. हिस्ट्री को शुरू करके, when history started, there was caveman. He has no house, no address, no identity. किसी केवमैन ने आपको कभी ये कहा कि मेरा एड्रेस हो फला फला की केव के पीछे है, 4th फ्लोर की केव मेरी केव है? नो। So we were nowhere. We were not knowing where we are. Because even today, एक मरुस्थल का आदमी, एक एस्किमो, एक जंगल का आदमी, सब लोगों को if we get them to sleep and take them to Manhattan और वहाँ जाकर मैनहट्टन में उनको जागने के लिए कहा जाए, they will feel that they are in heaven. Because they don't know that all these things do exist in this world.
So I was saying those 5 words, so we were nowhere. Now from nowhere, slowly we created villages and cities, और उसके बाद हम लोग गाँव में रहने लगे, शहरों में रहने लगे. From nowhere we came to somewhere. Then technology improved, बहुत प्रोग्रेस हुई, and slowly we were everywhere. Now three words: nowhere, somewhere, and then everywhere. Through mobile, through internet, through satellite, through TV, remote controls, we are everywhere. Then we went elsewhere. Overuse of technology. आप देखिए, जब आप मीटिंग में होते हैं, you are talking on phone. If there are 10 people, 10 persons are present in the meeting, we are waiting for the 11th. We are somewhere else, and we try to be someone else. So because of overuse of technology, we are elsewhere. And after that, today when we are talking, we are now here. So we started from nowhere and we reached now here. So nowhere, where का W आके no के साथ लग गया, and it became now where, now here. Okay? चेंज आप सबकी लाइफ में है. चेंज इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना. अगर दुनिया में कुछ परमानेंट है तो वो चेंज है. एंड दोज हु रेजिस्ट चेंज, दे हैव ऑलवेज ए फियर ऑफ बीइंग इंस्टिंक्ट. यू नो, 5 billion species have disappeared from this world. जब से ये दुनिया बनी है, 5 billion species disappear हो गई. और आज जितनी स्पेसीज बची हैं, साइंटिस्ट से कि 10 मिलियन के करीब बची हैं, एंड मैन हैज़ कैटलॉग्ड ओनली 1 मिलियन ऑफ देम. उसमें से इंसान एक है. एंड बिकॉज man knows how to change, we are changing continuously. That's why we have no fear of being extinct. लेकिन आप ये देखिए कि जब हम लोग चेंज करते हैं तो हम लोग ये समझते हैं कि फटाफट सब चेंज हो जाए. सर्दियाँ फटाफट चली जाएं, गर्मियाँ फटाफट चली जाएं, बरसात फटाफट चली जाए, ये आ जाए वो आ जाए. बट सो ध्यान रखिए, दैट चेंज डजंट हर्ट अस, रेट ऑफ चेंज हर्ट्स अस. क्योंकि हम लोगों को लगता है कि जो सीजन का चेंज 1000 years में होना था, वी आर ट्राइंग टू डू इट इन 100 years. आप इसको ऐसे समझिए कि इफ़ वी आर चेंजिंग आवर माइंड आफ्टर एवरी 5 years, दैट विल बी मैडनेस. या कोई आदमी 100 साल में मरने वाला है, वी से अल्टीमेटली ही इज गोइंग टू डाई, सो फिनिश हिम इन 50 years. सो दैट स्पीड, दैट रेट इज हर्टिंग अस. आप ये देखिए कि फॉर चेंज, हम लोग चेंज तो करते हैं, बट डू वी रियली चेंज? बिकॉज देर आर सम प्रॉब्लम्स विथ आवर चेंज ऑल्सो. We want to go for vacations. When we are working in the office, we want to go for vacations. But vacation is a change. What is vacation? Vacation is change of place. Because you cannot have vacation at your home. आप घर में वेकेशन नहीं मना सकते.
तो आप बाहर जाएंगे वेकेशन के लिए, लेकिन यू आर गोइंग विद द सेम पीपल, सेम फैमिली मेम्बर्स, सेम प्रॉब्लम्स, सेम माइंडसेट एंड सेम फाइट्स. सो दिस इज द ओनली चेंज ऑफ प्लेस for fights, for problems. So we have to change this. What is relaxation? Change of activity. Change of activity. But sometimes we are confused. Whenever we are in office, we think about home. When we are at home, we think about office. So that's एक बोटमैन के साथ एक आदमी बोटिंग कर रहा था. He was enjoying. So he said, "Ke boating is very nice." He said, "No, I want to work in office." So change of activity. But we should be happy with that, right? Happiness is an attitude. Change of attitude, happiness. But when we don't change it, because if somebody is getting promotion in your office and you are not happy, that's not a change. So change your attitude and be happy with the progress of others. So that will be a nice change, right? So same way, meditation is change of mindset. And enlightenment is change of being. So इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें कि जब हम चेंज करें तो पॉजिटिव चेंज होना चाहिए. बहुत बार ऐसा होता है, पीपल से आई कांट चेंज, मेरी आदत पड़ गई है, मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ. आई टेल यू वन थिंग, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, दैट एवरी 20 years all cells of your heart totally change. 20 साल में आपके हार्ट के सारे सेल्स चेंज हो जाते हैं. Every 10 years all cells of your bones totally change. Every 5 years all your hairs change. Every 8 months all your nails change. Every 3 months your liver changes. Every 21 days all cells in lungs change. Every 14 days all cells in your skin change. Every 10 days all cells in your tongue and taste bud change, and every 3 days your intestine changes. And then you tell me you can't change, right? So we are continuously changing. The only thing is we don't realize sometime. हमारी बॉडी में इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं, बट डू वी रियली रियलाइज कि कितने सारे चेंजेस हो रहे हैं. ठीक है, उसके बाद भी कुछ लोग कहते हैं कि सॉरी, आई कैन नॉट डू इट, आई कैन नॉट चेंज, आई विल शेयर माई PPT with you. So this is a change. The contents of this contents are: 1. Specifications of change. 2. Why don't we change? 3. Necessary things for change. 4. Formula of change. 5. Superficial change. Reactions to change and practice to change. दुष्यंत कुमार ने कहा है कि ये कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो क्योंकि इसके कमल मुरझाने लगे हैं. सो लेट अस चेंज एंड लेट अस टॉक चेंज.
जब कोई आदमी कहता है, आपने बहुत बार सुना होगा, आपके घर में भी होता है, आपके ऑफिस में भी होता है, जब आप किसी को कहते हैं कि अपनी आदतें बदलिए, अपना व्यवहार बदलिए, अपना स्वभाव बदलिए, देयर आर सो मेनी थिंग्स which have to be changed, and when you ask them to do that, or anything you want them to do according to yourself, you want to you want to tell them to change, then they say that I cannot do it, I cannot do it, मैं ऐसा नहीं कर सकता. अगर कोई व्यक्ति, अब now be careful, because this is, as Preeti madam said, this is a very important topic in our today everyday's life. So I can't do it, when somebody says it, it means he is saying two things. वो दो बातें कह रहा है. एक, I don't know how to do it, this I don't know the method, and second, I don't want to do it. पहली, मुझे पता नहीं कैसे करना है. दूसरा, मैं इसे करना नहीं चाहता. If he says I don't know how to do it, अगर, क्योंकि देखिए दो ही बातें आदमी कह सकता है. अगर कोई किसी काम को नहीं करता है ना, देयर कैन बी ओनली टू पॉसिबिलिटीज, आइदर ही डजंट नो हाउ टू डू इट और ही डजंट वांट टू डू इट. सो इफ ही सेज आई डोंट नो हाउ टू डू इट, इट मीन्स दैट दिस इज ट्रेनिंग इशू. वी शुड इम्पार्ट ट्रेनिंग टू हिम if he doesn't know how to do it, and we should teach him how to do it, right? It means he is willing to do it, but he doesn't know, so it is our duty that we should impart training. अगर वो कहता I don't want to do it, मैं इसे करना नहीं चाहता, तो वो फिर दो बातें कह रहा. Again, one, I don't care. Second, I think I should not do it. You might have seen on the roads, आपने देखा होगा, जहाँ भी दिल्ली में या जिन भी शहरों में आप रहते होंगे, वहाँ आपने देखा होगा कि आई डोंट केयर का जो एटीट्यूड है वो बहुत परेशान करता है. हेलमेट लगाने के लिए पुलिस को या गवर्नमेंट को हम लोगों के ऊपर फाइन करना पड़ता है. कहने का मतलब ये कि हमारे सिर की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार की. जब तक सरकार हम पर जुर्माना नहीं करेगी, हम लोग हेलमेट नहीं पहनेंगे. सो आई डोंट केयर. एंड सो इफ ही सेज आई डोंट केयर, सेकेंड थिंग इज आई थिंक आई शुड नॉट डू इट. आई थिंक आई शुड नॉट डू इट मीन्स दिस इज नॉट ए करेक्ट थिंग टू डू. ये काम करना सही नहीं है. अगर वो कहता है कि आई डोंट केयर, तो इसका मतलब दिस इज एटीट्यूड इशू. ये उसके एटीट्यूड का मामला है. और अगर वो कहता है कि आई थिंक आई शुड नॉट डू इट, मुझे लगता नहीं कि मुझे करना चाहिए, तो ये वैल्यूज का मामला है, ये उसके जीवन मूल्यों का मामला है. हम लोग पार्लियामेंट्री कमेटी में बहुत सारे, हिंदुस्तान के बहुत सारे ऑफिसेज में जाते थे, बहुत सारी जगह पे 18 मंत्रालय मेरे पास थे, और 18 मंत्रालयों में हम लोग निरीक्षण करते थे. तो देखते थे, अक्सर मैं लोगों से बातें करता था, तो मैं लोगों से जो पूछता था कि अगर आप अपने स्टाफ के लोगों में कुछ चेंज करना चाहें तो क्या चेंज करना चाहेंगे. तो अक्सर उसका जवाब मिलता था कि वी वुड लाइक टू चेंज देयर एटीट्यूड. हम उनका एटीट्यूड चेंज करना चाहेंगे. क्यों? एटीट्यूड से क्या होता है? एटीट्यूड का बहुत फर्क पड़ता है. कैसे? देखिए, अगर हम लोग एक काम करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है. अगर हम ए से जेड तक जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनको एक नंबर दे दें, ए इज इक्वल टू 1 एंड जेड इज इक्वल टू 26, ए से जेड तक, तो अब देखिए, knowledge is 11 plus 14 plus 15 plus 23 plus 12 plus 5 plus 4 plus 7 plus 5, KNOWLEDGE. So knowledge gives you
96% success in change. Then you do some hard work. Hard work जब आप करते हैं नॉलेज के साथ, so it gives you 98% success, right? And now look at this. Attitude gives you 100%. When you change your attitude, it gives you 100% success. But can attitude alone do it? No. Then I found out some more things, that only attitude cannot do it. So जब attitude आप change करेंगे तो attitude के साथ साथ आपको discipline भी करना होगा, अपनी लाइफ में लाना होगा. और जब आप डिसिप्लिन लाएंगे तो इट विल अगेन गिव यू 100% डिसिप्लिन. और जब आप चेंज कर रहे हैं, आप देखिए इस बात पे ध्यान दीजिए कि जब आप चेंज कर रहे हैं, अपनी लाइफ में चेंज ला रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको अपनी आदतों को, अपने व्यवहार को, अपने दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल के दोबारा बहुत सारी चीज़ें शुरू करनी होंगी. इसका मतलब ये हुआ कि यू हैव टू री इंजीनियर एवरीथिंग. यू हैव टू री इंजीनियर एवरीथिंग. सो लेट्स सी, री इंजीनियर अगेन गिव्स यू 100%. Isn't it interesting? Sure. So अब आप देखिए, एक बड़ी और मज़ेदार चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ कि थिंक अबाउट पीपल वर्किंग इन द सेम एटमॉस्फेयर. सम ऑफ देम ब्रेक रिकॉर्ड्स, वेयर एज सम ऑफ देम ब्रेक देमसेल्व्स. एक ही एटमॉस्फेयर में आपने देखा होगा, आपके एयरपोर्ट अथॉरिटी में बहुत सारे लोग काम करते होंगे, लेकिन उन्हीं में से कुछ लोगों को अवार्ड्स मिलते होंगे और कुछ लोगों को पनिशमेंट मिलता होगा. क्यों? ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ देयर एटीट्यूड, बिकॉज दे डोंट वांट टू चेंज. और जो मैंने शुरू में बताया, देखिए पशुओं में चेंज करने की प्रवृत्ति नहीं होती. आपने कभी सुना है कि अभी वो जो पहले की जो काउज होती थी, पहले के जो घोड़े होते थे, गाय होती थी, वो ग्रास खाती थी. आजकल की गाय चाइनीज़ ग्रास खाती है. हैव यू हर्ड दैट? नो. या उन्होंने मकान बनाने शुरू कर दिए, या उन्होंने कॉलोनीज बनानी शुरू कर दी. नो. बट वी कैन. सो इट डिपेंड्स ऑन आवर एटीट्यूड कि कुछ लोगों को अवार्ड मिलता है और कुछ लोगों को पनिशमेंट. सो आगे चलते हैं. लेट्स सी. Slightest change make our lives valuable 1,000 times. मैं आपके साथ एक बड़ी अच्छी घटना शेयर करना चाहता हूं. एक बार एक जगह नीलामी हो रही थी. ऑक्शन हो रही थी. तो ऑक्शन करने वाला जो व्यक्ति था वो स्टेज पर खड़ा हुआ. उसके पास बहुत सारी चीज़ें थी ऑक्शन के लिए. और जब वो नीलामी करने लगा तो वो एक एक चीज़ को हाथ में उठाता, ऊपर करता और बोलता $100. उसके बाद लोग उसकी बोली बढ़ाते जाते, $200, $300, व्हाटएवर. तो बोली बढ़ाते जाते और जो सबसे बड़ी बोली होती, द हाईएस्ट बिडर जो होता, उसको वो चीज़ दे दी जाती. तो धीरे धीरे ये सब कार्यक्रम चलता रहा और वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई. सिर्फ आखिरी आइटम बच गया. एंड द लास्ट आइटम वाज अ वायलिन. उसने वो वायलिन हाथ में उठाया. he picked it up and said $100. When he said $100, people started laughing. हंसने लगे, क्योंकि वो वायलिन जो था वो बहुत पुराना सा था. उसके स्ट्रिंग्स ढीले हो गए थे, उस पर डस्ट जमी हुई थी. That's why people started laughing.
तो उसने सोचा कि $100 में से कोई नहीं लेगा. Then he said, okay, $75. But there was no sound. कोई नहीं बोला. Everybody was quiet. Then he said, okay, $50. There was no taker. Nobody was there. He said, okay, $25. People kept mum. Then he said, ultimately, okay, $5. पीछे से एक आदमी खड़ा हुआ. He was an old person. वो धीरे धीरे चलता हुआ कुछ कदम आगे आया and he said, hold on, I am coming. Slowly, gradually he came to the stage. उसने वो वायलिन अपने हाथ में लिया, अपनी जेब से रुमाल निकाला. He wiped it off, cleaned it and changed the strings. उसने स्ट्रिंग्स को थोड़ा सा चेंज कर दिया, स्लाइटली चेंज कर दिया. और चेंज करने के बाद he started playing the violin. It was so melodious. इतना अच्छा बजा रहा था वो. सब लोग उसको सुनते रहे. लोगों को टाइम का भी ध्यान नहीं रहा. आधा घंटा वो वायलिन बजाता रहा. हर आदमी अपनी जगह पर बैठा हुआ उसकी तरफ देख रहा था, सुन रहा था. आधे घंटे बाद उसने अचानक वायलिन बजाना बंद किया और उसने कहा, $100. पीछे से आवाज आई, $200, $500, $1,000 and ultimately the violin was sold for $5,000. Why? Because of a little change, slightest change, you know. इसलिए मैंने कहा, जिस वायलिन को कोई $5 में लेने को तैयार नहीं था, वही वायलिन $5,000 में खरीदा गया. That's why I say कि slightest change make our lives valuable 1,000 times. लेकिन फिर भी हम लोगों के साथ थोड़ी सी समस्याएं रहती. एक्चुअली क्योंकि चेंज की अपनी विशेषताएं हैं, स्पेसिफिकेशंस हैं. व्हाट आर द स्पेसिफिकेशंस? देखिए, डोर ऑफ चेंज ओपन्स फ्रॉम इनसाइड. बदलाव का दरवाजा अंदर से खुलता है. मैं आपको तब तक चेंज नहीं कर सकता जब तक आप खुद चेंज नहीं होना चाहते. मैं कितनी भी कोशिश करूं, अगर आप चेंज नहीं होना चाहते तो मैं आपको चेंज नहीं कर सकता. जिस दिन हम चाहेंगे, यस आई वॉन्ट टू चेंज माई सेल्फ, देन इट बिगिंस. सो फर्स्ट स्पेसिफिकेशन इज दैट डोर ऑफ चेंज ओपन्स फ्रॉम इनसाइड. आपके अंदर से बदलाव का दरवाजा आपके अंदर से खुलता है. दूसरी बात, लाइफ इज टेस्टलेस विदाउट चेंज. चेंज के बिना जीवन नीरस हो जाता है. आपको पता है, आज हम लोगों को हर रोज चेंज चाहिए, हर रोज चेंज चाहिए. आप कभी अपने घर में जाके देखना, आई बॉट टू द लेडीज ऑफ द हाउस, जिनको हर रोज 3 बार सोचना पड़ता है कि कौन सी सब्जी बनानी है. बिकॉज वी से नो, वी वांट अ चेंज. हम लोग हर रोज कपड़े चेंज करते हैं, हर रोज सॉक्स चेंज करते हैं. हर रोज़ थोड़ी देर के बाद हम लोग टीवी देखने लगे तो रिमोट अगर हमारे हाथ में हो तो हर कुछ देर के बाद हम लोग चैनल चेंज कर देते हैं, क्योंकि लाइफ इज़ टेस्टलेस. अगर आप ये देखिए कि आपके लाइफ में एक ही चीज़ रोज रोज चलती रहे, विल देयर बी एनी टेस्ट? नो. थर्ड थिंग, चेंज हैपन्स स्लोली. चेंज धीरे धीरे होता है. इसलिए मैंने कहा आपसे कि चेंज डजंट हर्ट अस.
रेट ऑफ चेंज हर्ट्स अस। हम लोग चाहते हैं कि एकदम हो जाए, अगर चेंज होना है तो एकदम हो जाए, लेकिन चेंज टेक्स इट्स ओन टाइम, सो इट डजेंट गो फास्ट। क्योंकि अगर फास्ट हो जाएगा तो हम लोग आप सोचिए कि आज गर्मी है, आज से 40 डिग्री टेम्परेचर है, कल 4 डिग्री हो जाए, एक दिन के बाद फिर 5 डिग्री हो जाए या 45 डिग्री हो जाए, विल इट बी ओके? नो। इसलिए आपने देखा, हाउ कैन वी अडैप्ट? इसलिए आपने देखा होगा जब गर्मी के बाद बरसात, गर्मी थोड़ी सी कम हो जाती है, इसके बाद फिर धीरे 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 द विंटर सेट्स इन, धीरे धीरे सर्दी शुरू होती है और हम उसको अडेप्ट करते जाते हैं। सो चेंज हैपन्स स्लोली। नेक्स्ट इज चेंज इज इनएविटेबल। चेंज तो होना ही है, आप चेंज होते हैं या नहीं। सो आई ऑलवेज से चेंज इज इनएविटेबल, प्रोग्रेस इज ऑप्शनल। प्रोग्रेस आप करना चाहें ना करना चाहें ऑप्शनल है, चेंज तो होगा ही। अगर आप ये सोचें कि अगर मैं नाराज हो जाऊंगा तो कल सूरज नहीं निकलेगा, इट्स नॉट दैट। चेंज तो अपने साथ आएगा ही। आप देखिए, आज से 25 साल पहले हम लोगों की जो जनरेशन है, स्पेशली मेरी जो जनरेशन है, वो एक ऐसी जनरेशन है, आई थिंक वी आर द लकीएस्ट पीपल, जो हमने इतने सारे चेंजेस देखे। हमने वो बड़े लैंडलाइन से लेकर और स्मार्ट मोबाइल तक देखा है। दैट्स व्हाई समटाइम्स आई से दिस इज एन एज ऑफ गाइडेड मिसाइल्स एंड मिसगाइडेड पीपल। इट इज एन एज ऑफ स्मार्टफोन्स एंड इडियट पर्सन्स। सो इतने चेंजेस हमने देखे हैं। हमने आप लोग हो सकता है अभी तो आपने तो देखा होगा, लेकिन हमारी आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनको यही नहीं पता होगा कि टेलीग्राम क्या होता था, फैक्स क्या होता था। उनको नहीं पता कि कोयले का इंजन कैसा होता था। वो सब या तो वो किसी म्यूज़ियम में देखेंगे या फिल्मों में देखेंगे, बट दे कैन नॉट सी इट लाइव। तो हमारी जो जनरेशन है, आप लोगों की जो जनरेशन है, वी हैव सीन सो मेनी चेंजेस, अ बिग चेंज, यू नो। टेक्नोलॉजी में कितना चेंज आ गया है, इतना चेंज आ गया कि अगर जैसा मैंने शुरू में कहा कि हमारे यहाँ माइक्रो होम्स बन गए हैं। अगर आपके इफ़ यू आर लिविंग इन ए जॉइंट फैमिली, आपके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ग्रैंडफादर great grandfather, grandfather, and your father, and you, and your children, they are staying together in one house. तो आपके बच्चे जो जानते हैं, आपके ग्रैंडफादर वो नहीं जानते, या ग्रेट ग्रैंडफादर वो नहीं जानते। एंड इवन वी समटाइम्स वी फील आवरसेल्व्स आउटडेटेड। आप कोई नया मोबाइल खरीदते हैं तो उसके बहुत सारे फंक्शंस आपको नहीं पता होते, एंड यू फील आवरसेल्व्स आउटडेटेड। फिर हम लोगों को चेंज करना पड़ता है। सो चेंज इज़ इनएविटेबल। पहले हम लोगों को लगता था कि मोबाइल की क्या ज़रूरत है, लेकिन आज दो की ज़रूरत है। सो नेक्स्ट इज आइदर चेंज और पैरिश। मैंने पहले भी आपसे कहा कि जो चेंज नहीं होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। आइदर चेंज और पैरिश। जो बीज ज़मीन में डाला जाता है, जो सीड ज़मीन में डाला जाता है, इफ़ इट डजेंट चेंज, अगर वो अपने आप को एक पौधे में नहीं बदलता है तो वो नष्ट हो जाता है। इट विल गेट पैरिश्ड, और ज़मीन के नीचे उसका क्या हुआ, नोबडी नोस। इसीलिए जितनी स्पेसीज एक्सटिंक्ट हो गई हैं वो इसीलिए हो गई हैं दैट दे डिड नॉट चेंज। आप सबने कोडैक को सुना होगा, कोडैक का नाम सुना होगा। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। 88 में कोडैक शुरू हुआ। पोलराइड कैमराज,
रील्स और फोटो पेपर एवरीथिंग। और 88 में शुरू हुआ और 90 आते आते 90% ऑफ द मार्केट शेयर ऑफ फोटोग्राफी और फोटोग्राफिक दिस इंस्ट्रूमेंट्स एंड ऑल दैट, दे वर कैप्चर्ड बाय कोडैक। 90% हिस्सा दुनिया के बाजार का फोटोग्राफी का कोडैक के पास था। उनका एक बड़ा स्मार्ट इंजीनियर था, बहुत एडवांस था, स्मार्ट था, शार्प था। 1975 में उसने कहा, कोडैक को, मैनेजमेंट को कहा कि मैं डिजिटल कैमरा बना सकता हूँ, आई कैन मेक डिजिटल कैमरा, बिकॉज आने वाले टाइम में डिजिटल कैमरा विल बी द मोस्ट सॉट थिंग। लेकिन उन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, हम लोगों का इतना पैसा इस इंडस्ट्री में लगा हुआ है, सो इट विल ईट इन आवर प्रॉफिट्स, सो नो, वी डोंट वांट टू गो फॉर दैट, एंड दे डिड नॉट गो फॉर दैट, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। 2012 Kodak had to apply for bankruptcy. Kodak bankrupt हो गया। दूसरा आपको एक और उदाहरण देता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि आप चेंज भी हो जाते हैं। So when you change, you should change in time, at right time. Sometimes you change at right time, but you don't change in right direction. आपने एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का नाम सुना होगा। शायद ही कोई ऐसा पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा जिसने एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का नाम ना सुना हो। 244 years, I repeat, 244 years, it was a pool of knowledge. Everything was available there. They changed also. उन्होंने CDs बनाई, मल्टीमीडिया CDs बनाई, लेकिन उस स्पीड से वो चेंज नहीं हुए जो सारी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी। सडनली क्या हुआ, विकीपीडिया आ गया। विकीपीडिया आने से द वर्ल्ड बिकेम द ऑथर, वर्ल्ड बिकेम द मॉनिटर, वर्ल्ड बिकेम द यूजर। और सेम थिंग हैपेंड विद Encyclopedia Britannica also, that in the year 2014 Encyclopedia Britannica had to shut their shop. So this is the power of change. So we have to change with time. जब इतना सब है and we know each and everything, even then why don't we change? Just think of it. Why don't we change? Now, let's see. Change is a painful process. जब हम चेंज करते हैं तो बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है। अगर हमें कोई कहे कि आप सुबह कितने बजे उठते हैं, इफ आई से कि मैं 6 बजे उठता हूँ, अगर कोई मुझे कहे कि 5 बजे उठो आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, आई नो दैट, बट इट इज़ पेन फॉर मी। ये मेरे लिए पेनफुल है। आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ईगल जो होता है, ईगल की एज 40 इयर्स होती है, और 40 इयर्स होते होते ईगल कमज़ोर होने लगता है, उसकी बीक आगे से मुड़ जाती है, उसके नाखून आगे से मुड़ जाते हैं, वो शिकार नहीं कर सकता, अपनी बीक मुड़ने की वजह से वो खा नहीं सकता, और उसके पंख, विंग्स इतने हैवी हो जाते हैं और उसकी चेस्ट के साथ चिपक जाते हैं कि वो उड़ नहीं सकता। नाउ इट कैनॉट फ्लाई, इट कैनॉट ईट, एंड इट कैनॉट
कैच द प्रे। तो कैसे जिए, जिंदा कैसे रहेगा? शिकार नहीं पकड़ सकता, खा नहीं सकता, उड़ नहीं सकता, तो जिंदा कैसे रहेगा? नाउ इट हैज़ टू ऑप्शंस, या तो वो वहीं बैठा बैठा मर जाए, या फिर इट शुड गो टू अ हिल, किसी चट्टान पर चला जाए और वहाँ चट्टान पे लगातार अपनी बीक को मारता रहे और वो बीक आगे से टूट जाए। इट इज़ रियली पेनफुल। एंड देन ही स्टार्ट्स knocking his nails, his paw against this mountain, and then he continuously start flapping his wings, and after some time, it is a total process of 90 days. After 3 months, his wings fall, he gets a new beak, he gets new paws, new nails, and new wings, and it can live for another 30 years. So the thing is, what I want to say, that though change is a painful process, but if you want to survive, we need to change. Second thing, we don't know what to change. जो मैंने कोडैक की बात आपसे कही, they didn't know what to change, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं कि चेंज करना क्या है। करना तो है, लेकिन क्या करना है, we don't know. So that becomes a problem. That's why we don't change, because sometimes we don't know. Next, social remarks. हम लोगों को लगता है कि लोग पता नहीं, लोग क्या कहेंगे, ये चेंज हो गया है, इसने ये कर लिया है, अच्छा अब तो ये भी। सो मेनी रिमार्क्स, सामाजिक अभ्युक्तियाँ से डर कर हम, क्योंकि हमारी लाइफ में सबसे बड़ी समस्या यही होती है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो वी आर ऑलवेज अफ्रेड ऑफ सोशल रिमार्क्स एंड वी डोंट चेंज। नेक्स्ट इज कंफर्ट जोन। वी आर ऑलवेज इन कंफर्ट जोन। एक बात के हम अभ्यस्त हो गए हैं, उस बात से हम लोग बाहर नहीं आना चाहते हैं। अंग्रेज़ी में हम लोग लिख रहे हैं, हिंदी में करना चाहते हैं, नहीं अब ठीक है ना, अंग्रेज़ी में लिख रहे हैं, इट्स ओके। बिकॉज एक बात हमेशा याद रखिए कि योर सक्सेस जोन इज़ जस्ट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपकी सफलता का जो जोन है वो आपके आराम के जोन के जस्ट बाहर है। जैसे ही आप वहाँ से निकलेंगे, आप सफलता की तरफ चले जाएंगे। इसके बाद बहुत लोगों को लगता है कि दिस इज़ नॉट एज टू लर्न। हाँ, एक शायर ने कहा है कि उम्र तो गुजरी है सारी बुत परस्ती में, अब इस उम्र में क्या खाक मुसलमान होंगे। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं अब तो बूढ़े हो गए हैं, अब 50 साल हो गए हैं, अब 60 साल हो गए हैं, अब 70 साल हो गए हैं, सो क्या चेंज होंगे, अब तो ठीक है, अब तो जितनी ज़िंदगी बची है उतनी कट जाए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ऑल नेगेटिव थिंग्स दे टॉक। जब भी आपको अवसर मिले और जब आवश्यक हो, वी मस्ट चेंज। नेक्स्ट इज वाई इज नॉट क्लियर। वाई इज नॉट क्लियर, ध्यान रखिए, व्हेन वाई इज क्लियर, फैक्ट्स डोंट काउंट। जब क्यों स्पष्ट होता है कि हमें क्यों करना है ये काम, जब क्यों स्पष्ट हो जाता है तो फिर बाकी चीज़ें मायने नहीं रखती। मैं आपको एक छोटी सी और घटना सुनाता हूँ। एक बार एक व्यक्ति था, उसके पास मारुति कार थी पुरानी, जो 800, ये सच्ची घटना है, 800 मारुति कार थी उसके पास। और वो एक दिन, ही वॉज ऑटोमोबाइल इंजीनियर, तो वो अपनी गाड़ी को खुद ही ठीक कर रहा था, नीचे जैक लगा के नीचे वो घुसा हुआ था। और उसका छोटा सा बेटा था 4-5 साल का, वो भी उसके साथ अंदर उसके नीचे घुस गया। और पता नहीं कैसे उस बच्चे का पैर जोर से उस जैक को लग गया, और जैक को लगते ही वो गाड़ी उन दोनों के ऊपर गिर पड़ी।
उसकी वाइफ उस सब को देख रही थी, वो दौड़ के आई, उसने आगे से गाड़ी का उठाया बोनट की साइड से, और धीरे धीरे पूरा जोर लगाकर उसने गाड़ी को उठाया, और जैसे ही गाड़ी को उठाया वो दोनों गाड़ी के नीचे से बाहर निकल आए। उसके हाथों से खून आ रहा था, और जैसे ही वो बाहर निकले उसके हाथ से गाड़ी छूट गई। और उसके बाद वो कभी कोशिश करके भी उस गाड़ी को नहीं उठा पाई। क्यों? कारण ये था कि उस दिन उसने ये सोचा ही नहीं कि मैं गाड़ी को उठा सकती हूँ या नहीं। उसको अपने पति और अपने बच्चे को बचाना था। सो वाई वॉज क्लियर, वाई शी वॉज डूइंग इट, इट वॉज क्लियर। तो उसको ये नहीं पता कि उसने कैसे उठा लिया, बट शी डिड इट। आपने बम्बल बी का नाम सुना है? बम्बल बी जो है, साइंस कहती है, फिजिक्स सेज कि बम्बल बी की विंग्स इतनी वीक होती हैं और उसकी बॉडी का जो वेट होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि एज पर द लॉज ऑफ फिजिक्स बम्बल बी कैनॉट फ्लाई, बट बम्बल बी फ्लाइज। Why, you know? Because bumblebee has not studied science. Right? Because there is nobody there. कोई बताने, कोई कहने वाला नहीं है कि you cannot do it. Right? So, why is clear. Bumblebee के सामने why clear है कि क्यों उसको उड़ना है तो उड़ना है. Right? And the last one is, last but one, we want others to change. हम चाहते हैं कि दूसरे बदल जाएं, हम तो ऐसे कैसे रहें। कई बार हम लोगों से पूछते हैं कि कैसा चल रहा है आपका लाइफ में, तो वो कहते हैं बस सब ठीक है, मेरे पापा मम्मी थोड़ा चिड़चिड़ करना बंद कर दें, मेरा बॉस थोड़ा गुस्सा करना बंद कर दे, मेरी पत्नी थोड़ा झगड़ा करना बंद कर दे, मेरा पति थोड़ा झगड़ा करना बंद कर दे, मेरे बच्चे थोड़ा सा शरारत करना बंद कर दें, और मेरे पड़ोसी कचरा फेंकना बंद कर दें, बाकी सब ठीक है। What I mean to say कि हम सारी बुराइयां दूसरों में देखते हैं। हमारे माँ बाप ठीक नहीं है, हमारे हस्बैंड हमारी वाइफ ठीक नहीं है, हमारे पड़ोसी ठीक नहीं है, हमारे बच्चे ठीक नहीं है, बट हम ठीक हैं। नो, यू हैव टू चेंज। सो व्हेन यू चेंज, everybody will change, the world will change when you change, right? And next is we need a role model. हम लोगों को रोल मॉडल चाहिए। बहुत बार हम लोग बच्चों को कहते हैं कि आप ये काम करो, तो वो कहते हैं उसने किया था उसका क्या हुआ। सो वी नीड रोल मॉडल। जब कुछ और लोग, जब अपने मोहल्ले के सारे लोग चेंज हो जाते हैं और जब हमारा मजाक उड़ने लगता है, तब हम लोग भी चेंज होने के बारे में सोचते हैं। तो पहले हम लोगों को रोल मॉडल चाहिए। नाउ थिंग्स नेसेसरी फॉर चेंज, कौन सी चीज़ें आवश्यक हैं बदलाव के लिए। देखिए, नीड, वाई टू चेंज। सबसे पहले आवश्यकता है, वाई वी शुड चेंज। जब तक हमें ये क्लियर नहीं होगा कि हमें क्यों बदलना है, तब तक हम अपने आप को बदलेंगे नहीं। सेकेंड थिंग, विल टू चेंज। आपकी विल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपकी विल स्ट्रांग होती है तो स्किल हाउ टू चेंज आप में आ जाते हैं, लेकिन स्किल से पहले विल होना ज़रूरी है। आपको एक आपने उसका मोहम्मद अली का नाम सुना होगा। मोहम्मद अली अपने एक बड़ी फेमस बाउट लड़ रहे थे बेल्ट के लिए। तो जब वो अपनी बाउट लड़ रहे थे तो उनका जो विरोधी मुक्केबाज था, जो अपोनेंट था, उसने एक पंच उसको बहुत ज़ोर से मारा, और इतने ज़ोर से मारा कि वो नीचे गिर गए, और उनको इतना पेन हो रहा था, और उनका सिर घूम गया। ही फेल्ट गिडी, और उनको कुछ सूझ नहीं रहा था। ही वॉज लाइंग डाउन एंड क्राइंग विद पेन, और रेफरी ने काउंटिंग शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 आते आते ही गॉट अप and he was getting so much pain and he was so angry that he pounced upon the opponent. वो उसने इतना मारा अपने विरोधी को कि वो विरोधी गिर गया।
और उसके बाद वो बाउट जीत गए। जब बाउट जीत गए तो पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आपने इतनी स्किल्स कहाँ से सीखी हैं? तो आपके स्किल्स ने आज बहुत काम दिया। तो उसने कहा स्किल ने नहीं, जब मैं नीचे गिरा हुआ था और मुझे दर्द हो रहा था तो माई स्किल्स डिड नॉट हेल्प मी, माई विल हेल्प मी इन गेटिंग अप। सो विल अगर आपकी होगी तो उसके बाद ही आपकी स्किल्स आपके काम आएंगी, राइट? फॉर्मूला ऑफ चेंज। नाउ हाउ कैन वी चेंज? देखिए, C is equal to A plus B plus D less than X. Now, what is C? A is acceptance of the, C means change. C is change. A, acceptance of the need. पहले आप ज़रूरत को स्वीकार कीजिए कि हाँ मुझे बदलने की ज़रूरत है, तभी आप बदल पाएंगे। अगर हम ये कि नहीं मुझे तो बदलने की ज़रूरत है, मैं ठीक हूँ, यू कैनॉट चेंज। सेकेंड इज बिलीफ इन द सेल्फ। आपको अपने ऊपर यकीन होना चाहिए कि यस आई कैन चेंज माई सेल्फ, बिकॉज इफ यू डोंट बिलीव योर सेल्फ हु एल्स इज गोइंग टू बिलीव यू। अगर आपको दुनिया में कोई सबसे अच्छा जानने वाला है, आपको जानता है, तो आप हैं। यू आर द बेस्ट नोअर, आप ही जानते हैं। इसलिए आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। आपको अपने बारे में सब पता है। अगर आपको ही अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा तो दूसरों को तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो आपके बारे में सब जानते नहीं। सो बिलीफ इन द सेल्फ इज नेसेसरी। थर्ड थिंग इज डी, डिजायरेबिलिटी ऑफ फ्यूचर स्टेट। डिजायरेबिलिटी ऑफ फ्यूचर स्टेट मीन्स व्हाट? इसका मतलब है आप चेंज कब होते हैं? मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपने एक घर बुक कराया है और वो घर 5 साल बाद आपको मिलने वाला है। अब फ्यूचर स्टेट की डिज़ायरेबिलिटी आपके पास है कि 5 साल बाद मेरा घर ऐसा होगा, उसका ड्राइंग रूम ऐसा होगा, उसका बाथरूम ऐसा होगा, उसका किचन ऐसा होगा, मेरा लिविंग रूम ऐसा, ऑल दैट। सो एक फ्यूचर स्टेट आपने देख। सो इफ़ यू वांट टू अचीव दैट स्टेट, उस स्थिति को आप उपलब्ध करना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए चेंज करना, फिर आप अपना पैसे बचाना शुरू करते हैं, आप लोन लेते हैं, आप वॉट एवर यू डू। तो डिजायरेबिलिटी ऑफ फ्यूचर स्टेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ये एक्स इज कॉस्ट ऑफ चेंज। कॉस्ट ऑफ चेंज से ये सब कम होता है। बिकॉज एक बात हमेशा ध्यान रखिए, दैट कॉस्ट ऑफ फेल्योर इज ऑलवेज मोर देन द कॉस्ट ऑफ सक्सेस। कॉस्ट ऑफ फेल्योर इज ऑलवेज मोर देन द कॉस्ट ऑफ सक्सेस। नाउ कभी कभी क्या होता है कि हम सुपरफिशियल चेंज करते हैं, हम ऊपर ऊपर से चेंज हो जाते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि हम लोग वेकेशन पे जाते हैं लेकिन उसी माइंड सेट के साथ जाते हैं, वही हमारी समस्याएं ले जाते हैं, साथ में वही झगड़े होते हैं। सुपरफिशियल चेंज होता है, कुछ दिन के बाद वी ब्रिंग ए चेंज ऑन आउटर सरफेस, सून वी स्विच बैक टू आवर प्रीवियस बिहेवियर। हाँ, एक बार हमारे यहाँ मैंने अभी एक मैडम का नाम देखा था, शायद महाराष्ट्र के रहने वाले, तो वहाँ हाँ को बोलते हाव। नागपुर में, मैं 7 साल नागपुर में रहा, वो हाव बोलते हैं। ऐसे ही पंजाब में बहुत सारे लोग बोलते हैं आहो। तो एक बार एक फॉरेनर वहाँ आए, एक फॉरेनर आए अमृतसर में। अमृतसर आके तो वो स्टेशन से बाहर निकले तो उनको एक व्यक्ति मिला, उन्होंने पूछा इज़ इट रेलवे रोड? उसने कहा आहो। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड। फिर उसने थोड़ी दूर के बाद दूसरा आदमी मिला, उसने पूछा इज़ इट रेलवे रोड? उसने कहा आहो। उसको समझ नहीं आया बिकॉज ही वॉज ए फॉरेनर। फिर थोड़ी दूर के बाद एक आदमी मिला, उसने पूछा इज दिस रेलवे रोड? उसने कहा यस। उसने कहा वेट वेट वेट,
See, I met two other persons when I asked the same question from them. So they said aho and you said yes. Why? He said, because illiterate people say aho. And literate people, educated people, they say yes. So, okay, it means you are educated? He said, aho. तो हम कुछ देर के लिए तो चेंज करते हैं, लेकिन फिर से हम उसी बिहेवियर पर आ जाते हैं. नाउ, रिएक्शंस टू चेंज. Who ignores the necessity lives in pain. आप ध्यान रखिए, जो बदलाव की ज़रूरत को महसूस नहीं करता वो हमेशा दर्द में जीता है, क्योंकि उसको सभी पुरानी चीज़ों के साथ ही जीना पड़ता है और वो चीज़ें उसको समस्याएं देने लगते हैं. आप देखिए, आपने कोई पुरानी ऐसी चीज़ रखी होगी, अगर आप उसको आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको ठीक करने वाला कोई मार्केट में मिलेगा नहीं आपको. सो नेसेसिटी ऑफ चेंज इज रिक्वायर्ड. सेकेंड थिंग, who accepts the necessity but fears lives in past. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नेसेसिटी तो समझते हैं, उनको पता है कि चेंज करना ज़रूरी है, लेकिन चेंज करने से डरते हैं. इसलिए वो पास्ट में नहीं पहले ही अच्छा था, पहले बहुत अच्छा था. तो अक्सर आपने देखा होगा कि जो थोड़े से 50 साल से ज़्यादा के लोग हो जाते हैं, वो हमारे टाइम की बात अलग है. हम और ये बात हर जनरेशन के बाद साथ होती है, एवरी जनरेशन. तो वो लोग समझते हैं कि ठीक है वो बदलना ज़रूरी है, लेकिन मुझे बदलना ज़रूरी नहीं है, बच्चों को बच्चे बदल जाएं, ठीक है. एंड दैट्स व्हाई दे लिव इन पास्ट. वो पास्ट में ही जीते रहते हैं. थर्ड थिंग is who accept the necessity and pretends to change deceives others. जो नेसेसिटी को एक्सेप्ट करता है और चेंज करने का बहाना करता है, वो बहुत बार ऐसा होता है कि हम बाहर, अक्सर आपने देखा होगा कि लोग बाहर कुछ और दिखाते हैं अपने आप को, लेकिन घर आने के बाद फिर वैसे ही हो जाते हैं. हम जितने सुंदर कपड़े पहन के बाहर जाते हैं दूसरों को दिखाने के लिए, उतने सुंदर कपड़े पहन के घर में थोड़े बैठते हैं. मैं ये नहीं कहता कि आप सुंदर कपड़े पहन के घर में बैठिए, लेकिन ढंग के कपड़े पहन के तो बैठिए. सो वो दूसरों को धोखा देने के लिए होता है, वो बदलाव का बहाना करता है, वास्तव में बदलाव नहीं करता. देन नेक्स्ट इज हु एक्सेप्ट बट डजंट नो हाउ टू चेंज. ये एक जेन्युइन समस्या है. कुछ लोगों को ये पता होता है, वो एक्सेप्टेंस भी होता है कि हाँ हम लोगों को चेंज होना चाहिए, लेकिन कैसे करें. क्योंकि मान लीजिए आज एक व्यक्ति ये महसूस करता है कि उसको मोबाइल की ज़रूरत है, स्मार्टफोन की ज़रूरत है, लेकिन उसको नहीं पता है कि उसको कैसे करना है, कैसे चलाना है, कैसे डाउनलोड्स करने हैं. वो एक जेन्युइन समस्या है. सो वो ही कमिट्स मिस्टेक्स. सो वो उसको सीखने में थोड़ी गलतियाँ करता है, बट इट्स ओके. गलतियाँ करने के बाद हर आदमी सीख जाता है. देन हु एक्सेप्ट, एनालाइसिस एंड चेंजेस स्टेप बाय स्टेप सक्सेसफुली लीड्स द सोसाइटी. जो स्वीकार करता है, उसका विश्लेषण करता है और स्टेप बाय स्टेप एक एक करके बदलाव अपने जीवन में लाता है, वो सक्सेसफुली सोसाइटी को लीड करता है, नेतृत्व करता है समाज का. नाउ एक बात और आप ध्यान रखिए, आई से चेंज बट डोंट चेंज. डोंट चेंज द थिंग्स which make us human. Don't change your love towards human beings. You should love. You should have love. Second thing, compassion. Don't change compassion. You should feel pain for others. You should have compassion for others. You need not to change that compassion. And the last thing is faith in God. Don't change.
If you have faith in God, keep it. If you don't have faith in God, change. Right? That's why I say change, but don't change. Okay? So now one more thing I think I left. Okay. एक और बात, जब आप चेंज करेंगे तो हम लोग अपने आप को चेंज करेंगे कैसे? सबसे पहली बात होती है, आई थिंक दैट इज मिसिंग समवेयर। सबसे पहली बात होती है हैबिट। आपकी हैबिट होती है, आपको जब चेंज करना होता है तो आप अपनी हैबिट्स को कैसे चेंज करेंगे? राइट? मैं अभी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। अगर हम लोग कभी बहुत बार ऐसा होता होगा कि आप अपने घर में या अपने ऑफिस में लोगों को कहते होंगे कि आप अपनी हैबिट चेंज कीजिए, आपकी हैबिट्स ठीक नहीं है या आपका व्यवहार ठीक नहीं है, यू चेंज इट, आप बदलिए इसको। लेकिन क्या हमारी आदतें बदलना इतना आसान है? आदतें बनती कैसे हैं? आदतें जब बनती हैं जब हम, एक घटना होती है हमारे जीवन में, एक इंसिडेंट होता है, उस पर हमारा रिएक्शन होता है, दोबारा फिर वही इंसिडेंट होता है और दोबारा फिर हमारा रिएक्शन वही होता है। जब बार बार वही रिएक्शन होता है, इट बिकम्स आवर हैबिट। सो ये जो रिएक्शन होता है, दैट इज़ आवर बिहेवियर। सो इट मीन्स दैट आवर हैबिट डिपेंड्स ऑन आवर बिहेवियर। तो हैबिट को चेंज करने के लिए हम लोगों को अपने बिहेवियर को चेंज करना होगा। और बिहेवियर क्या ऐसे ही चेंज हो जाता है? हम लोग कहते हैं कि आप अपना व्यवहार चेंज कीजिए, अपना बिहेवियर चेंज कीजिए। इज इट दैट इजी? नो, बिकॉज योर बिहेवियर डिपेंड्स ऑन योर एक्शंस। आपके एक्शंस जैसे होते हैं वैसा ही आपका बिहेवियर होता है। क्योंकि अगर आपके एक्शन, देखिए मान लीजिए आप मंदिर जाते हैं या जो भी आपका पूजा स्थल है, जिसकी भी आप पूजा करते हैं या व्हाटएवर, वहाँ जाते हैं, आप जाते ही आप सब नेगेटिव आइडियाज़ निकाल देते हैं, आप हाथ जोड़ लेते हैं, आप धार्मिक हो जाते हैं। आपके एक्शंस वैसे ही होते हैं जैसे वहाँ होने चाहिए। और जब आपके एक्शन वैसे हो जाते हैं तो आपका बिहेवियर वैसा हो जाता है। आप दूसरों को लाइन में जगह दे देते हैं, आप बहुत विनम्र हो जाते हैं, पोलाइट हो जाते हैं। देन अगर आप बार बार वैसा ही करते हैं तो दैट बिकम्स योर हैबिट। सो हैबिट को चेंज करने के लिए बिहेवियर की ज़रूरत है, बिहेवियर को चेंज करने के लिए एक्शंस की ज़रूरत है। नाउ कैन वी चेंज आवर एक्शन? नो, बिकॉज आवर एक्शन डिपेंड्स ऑन आवर बिलीफ। वो हमारे बिलीफ पे डिपेंड करता है। आपको मालूम है, आप सब लोग, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू बिलीव इन गॉड। किसी न किसी नेचर में या किसी पावर में आप लोग बिलीव करते होंगे, और वो पावर जिसमें आप बिलीव करते हैं उसकी वजह से, बिकॉज ऑफ दैट बिलीव, अब आपको भगवान में विश्वास है तभी आप मंदिर गए हैं या जहाँ भी चर्च गए हैं, गुरुद्वारे गए हैं, मस्जिद गए हैं, व्हाटएवर। तो उस विश्वास की वजह से आप गए हैं, बिकॉज ऑफ बिलीफ, एंड बिकॉज ऑफ दैट बिलीफ दैट देयर इज़ गॉड, योर एक्शंस आर लाइक दैट। जो मैंने कहा, आप हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, आंखें बंद करते हैं, प्रेयर करते हैं, बिकॉज ऑफ दैट बिलीफ योर actions are like that. Then because of your actions your behavior is like that, right? And because of your behavior that becomes your habit, right? So if you want to change your habit, then
we should change our action, then we should change our behavior, then our action, then our belief. आपका बिलीफ कहाँ से आता है? देखिए, अगर हम किसी व्यक्ति को जानते हैं, इफ वी नो समबडी, हमारी किसी ने इंट्रोडक्शन करा दी है, हम उसको जानने लगे हैं, तो हमारा उसमें बिलीफ हो जाए, ये तो पॉसिबल है. बट हाउ मेनी ऑफ अस हैव सीन गॉड? हम में से कितने लोग हैं जिसकी भगवान से इंट्रोडक्शन हो गई, बट स्टिल वी बिलीव इन इट? हम उस पर विश्वास करते हैं. वाई? बिकॉज बचपन से हम लोगों को ये समझाया गया है, हम लोगों को बताया गया है, हमारे पेरेंट्स ने हमें बताया है कि भगवान है, भगवान बुरा मानेगा, अच्छे काम करने हैं, झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है, दिस एंड दैट. सो मेनी थिंग्स हैव बीन टोल्ड टू अस रिगार्डिंग द existence of God. That's why slowly we started believing it. हमने उस पर विश्वास करना शुरू कर दिया है, और विश्वास करने की वजह से हम लोग, जैसा हमारा विश्वास होता है, एज आई टोल्ड यू, वैसा हमारा एक्शन होता है, जैसा एक्शन होता है वैसा बिहेवियर. सो लेकिन विश्वास कैसे होता है? बिकॉज ऑफ द प्रोग्रामिंग यू हैव डन. आप तो कंप्यूटर एज के लोग हैं, आप जानते हैं कि आपका जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है आपके कंप्यूटर में, आपका जो प्रिंट आउट होता है, वो वही होता है जो आपने प्रोग्राम करके उसमें डाला है. तो इस तरह से हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग होती है, और प्रोग्रामिंग जब होती है तो फिर वही रिजल्ट हमें मिलने लगते हैं. और प्रोग्रामिंग के लिए अब बात यह है कि माइंड की प्रोग्रामिंग कैसे की जाए. सो आपने देखा होगा हमारे यहाँ, बिकॉज मैं हिंदू धर्म की बात करता हूँ, बहुत सारे शास्त्रों में बहुत सारे मंत्र हैं. आपने देखा होगा हमारे यहाँ पूजा होती है, आरतियाँ होती हैं, मंत्रोच्चारण होता है. मंत्र या जो भी हम लोग बार बार बोलते हैं, वो हमारा माइंड उसकी प्रोग्रामिंग हो जाती है. मंत्रोच्चारण का मतलब ही ये है, इट प्रोग्राम्स आवर माइंड एंड दैट बिकम्स आवर बिलीफ. तो उससे हमारी लाइफ पर एक अलग तरह का इम्पैक्ट होता है. वट एवर यू स्पीक. सो मेरा मतलब कहने का ये है कि जब हम लोगों को अपने माइंड को या अपने बच्चों के माइंड को प्रोग्राम करना है, तो उसके लिए वी शुड गिव देम सेल्फ टॉक. और इफ़ वी वांट टू चेंज द प्रोग्रामिंग ऑफ आवर माइंड, वी शुड स्टार्ट टॉकिंग टू अस. देखिए, आज की दुनिया बड़ी अजीब है. इतने सारे चेंजेस होने के बाद भी हम लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है. आप ये देखिए कि एवरीवेयर you might heard about peace talks, peace conferences, peace in the peace के लिए सब nations के ग्रुप बनाए जा रहे हैं. peace everywhere. But you know, very dangerous thing कि जो दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, सबसे ज़्यादा पैसा जिस इंडस्ट्री में लगा है, that is of weapons. इतना होने के बाद भी हमने सारा पैसा उसी में लगा रखा. सेकंड थिंग, और दिस इज मोर शॉकिंग, यू नो, हम लोग हैप्पीनेस क्लासेस हैं. कनाडा में हैप्पीनेस मिनिस्ट्री है. दिल्ली में स्कूल्स में हैप्पीनेस क्लासेस चलाई जाती हैं. हैप्पीनेस कोर्सेज हैं, हैप्पीनेस के ऊपर टॉक्स हैं. लेकिन यू नो, द मोस्ट सेलिंग ड्रग इज एंटी डिप्रेशन. तब भी हम लोग इतने डिप्रेस्ड हैं. सो वी नीड टू चेंज आवरसेल्व्स.
मोर डेंजरस थिंग आई टेल यू, हम लोग, हमारे पास इतने सारे एंटरटेनमेंट के साधन हैं, इतनी सारी नॉलेज है, न्यूज़पेपर्स हैं, टेलीविज़न है, इंटरनेट है, सब कुछ है, इतनी ज़बरदस्त कनेक्टिविटी शायद दुनिया में कभी नहीं रही हो जितनी कनेक्टिविटी आज है। बट आर वी रियली कनेक्टेड? जितनी लोनलीनेस आज है, इतनी लोनलीनेस लोगों में कभी नहीं थी। फेसबुक क्या, व्हाट्सएप क्या, ये वी आर कनेक्टेड टू ईच अदर। हमारे इतने सारे फ्रेंड्स हैं, फेसबुक पे मेरे 5000 फ्रेंड्स हैं, मेरे व्हाट्सएप पे 5000 फ्रेंड्स हैं, मेरे ट्विटर पे 5000 फ्रेंड्स हैं, बट आई एम सफरिंग फ्रॉम लोनलीनेस। दिस वी हैव टू चेंज। एक और बात आपको बताता हूँ, देखिए, आप सुबह अपना टीवी ऑन कीजिए, सुबह से 4 योगा गुरु आपको योगा सिखाते मिलेंगे। हर गली में आजकल जिम खुल गए हैं। आप किसी भी चैनल पे देख लीजिए, एक हेल्थ प्रोग्राम आ रहा है। आपकी हेल्थ के लिए इतने सारी मैगजीन्स छप रही हैं, आपकी हेल्थ के लिए टीवी इतना प्रचार कर रहा है, लेकिन हम आज की दुनिया की सबसे बीमार सोसाइटी है। वी आर द मोस्ट अनहेल्दी सोसाइटी ऑफ एनी टाइम्स। इसलिए तो एंटी डिप्रेशन ड्रग्स बिकता है। तो हम लोग ऐसी सोसाइटी हो गए, वी आर ऑब्वियस, क्योंकि देखिए, जो नेचर के साथ जिंदा रहते हैं, हमने प्रोग्रेस की तो हम ऐसे हो गए। आपने कभी बिकॉज द caveman नेवर हैड a प्रॉब्लम विद हिज belly, बट वी हैव। क्या आपने कभी सुना है कि एक देयर वाज ए फैट टाइगर? नो। सो इतना एंटरटेनमेंट होते हुए हम लोग उदास हैं, इतने जिम्स और ये होते हुए हम लोग अनहेल्दी हैं, इतने पीस टॉक्स होते हुए आर्मामेंट इतना ज़्यादा है। सो डेफिनेटली आप सब आज सोचिएगा कि वी शुड चेंज और नॉट, एंड इट शुड बी हैप्पी चेंज। एंड मैंने जैसा आपको बताया कि डोंट चेंज 3 things, that is love for humanity, compassion for humanity, and faith in God. Don't change these things. Rest. Whatever is required, we should change. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद। Over to you, ma'am. Thank you, sir. Thank you. It was good. सर एक एग्जाम का लिंक किया हुआ है कि हम अपना वहाँ से सारे सर एग्जाम लिख सकते हैं सर।